हम लोग ये गाने गाने तो जैसे अहम भूमिका निभाते हैं भाषा सिखाने में। इवन जब हम कोई भी फिल्म देखते हैं या कोई भी गाना सुनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसमें ग्रामर क्या है। तो जैसे अभी वो बता रहे हैं कि आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, तो उसमें सारे के सारे कमांड्स हैं। तो अगर हम कमांड सिखा रहे हैं तो हम शायद इस गाने का इस्तेमाल करेंगे। और अभी शायद आपने एक गाना सुना होगा, कल रात आया मेरे घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरे, है ना, जो भी। तो ये सारा पास्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में है। आके बोला जो भी है दे दे मुझे, है ना। तो ये गाना इतना, मतलब इसमें सब कुछ आ जाता है, पूरी संस्कृति को लपेट लेता है, क्योंकि ये गंगा का घाट है और बनारस में शूट किया गया है और बहुत साफ सुथरा गाना। एक लड़का पूरे गाने को पसंद Fulbright has group project abroad. Short term, it is a short term, there is also a long term. Curriculum project wants that the goal is that the language teachers of USA must produce teaching material that can train the educators as the world citizens. When I say world citizens, of course, United States takes great pride in making sure that the students of today become the future leaders, and whichever field they go to, they can take decisions, they can make a difference in decision making of the world. आपने पूछा था कि क्लास में इंटरेस्टिंग क्या है। हमारे टीचर्स हमें जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उसके पीछे एग्जाम्पल देते हैं। वो एग्जाम्पल मुझे सुनने बहुत अच्छे लगते हैं। वो कई एग्जाम्पल कोई स्टोरी के रिलेटेड होते हैं, कोई लाइफ के रिलेटेड होते हैं। उसके एग्जाम्पल के साथ साथ हम कनेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा हाँ ये बात है। और वो एग्जाम्पल के साथ साथ हमारा क्लास इंटरेक्शन बहुत होता है, जिसकी वजह से हमें एक दूसरे को जानने मिलता है। मैं 11th स्टैंडर्ड से यहाँ पर हूँ। ये 5 सालों में मैंने इतना कुछ अपने बारे में बताया है और दूसरों के बारे में इतनी जानकारी ली है कि लगता है हाँ ये इंसान में ये बात है, वो इंसान में वो बात है। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी है। प्रणाली, शिक्षा प्रणाली, दोनों प्रणालियों के बीच क्या अंतर है? You guys are in a major. Your major requires you to take certain courses. Once you get in the major, you know 1, 2, 3, 4, 5, you're done. In the States, you're in a major. You can combine a lot of courses. Not all of them belong to the major. So this is college. You might waste a few grand because you didn't do the right sort of calculation and planning, but that's a part of it. So at college level, we're going to talk about college level because that's what's relevant to you, but we also have interesting people who do other things outside of college. The point is, in college, in our Hindi classes, we have students who come for many reasons, not because of their major. They come for identity reason because they are heritage learners. They come for personal reason. They might be dating someone with that heritage or being married to one. We have academic purposes. We have business. मेरे पिताजी का व्यापार गांव में है। मैं मुंबई से आया हूँ न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, लेकिन वहाँ जब जाऊँगा अंग्रेजी उन लोगों को नहीं आती है, मैं क्या करूँगा? So we have all kinds of absurd situations, pleasant situations, and emotional situations in our classes. This is one. 2, related to that is not everyone is motivated that comes to our classes. Sometimes it's just a language requirement, but they're in business major, they're in economics major, we have script writing major. They don't see necessarily why. They're not motivated all the time. So our advantage as teachers is the challenge to motivate them. That's why our Paddhati is really innovative, but we have to come here
for our content, right? We can come up with very interesting ideas. We're going to get you up, you're going to go in the corners, you're going to go out one group, then you're going to come, then we're going to split you again, and it's all the time fun. But if we don't have content that is representative of the culture, as Ashokji said, of course the culture should be there with its products, practices, and perspectives, not one, not two, but three components of culture every time need to be in the classroom, right? But we need the updated content, and we need representative content based on what goes on in India. We don't want only mainstream. जैसे वो मेरा मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, सेकेंड सब्जेक्ट इंग्लिश, थर्ड हिंदी और फिर एलपी। मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था कि आप लोग जब अमेरिका में जब आप लोग हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी दिवस में आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? आप कैसे मतलब स्टूडेंट्स को कैसे बताते हैं कि आज हिंदी दिवस है, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? There are always certain common certain points where हम हमारे विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं, एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं कि क्लासरूम में आप किस तरह से अपना करिकुलम ट्रांजैक्ट करते हैं, किस तरह से हमारा जो पूरा सिलेबस होता है वो कैसे पिच इन कर सकते हैं। और भारत में जबकि अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तब स्टूडेंट्स का रोल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शिक्षक का, क्योंकि स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड्स ये हर एक पेज पे शायद आपको 34 पेजेस का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट इतना ही ज़रूरी है। वो क्या सीखना चाहते हैं, कैसे सीखना चाहते हैं। सब्जेक्ट है वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी है। मुझे हिंदी क्यों पसंद है? क्योंकि जो सर हमें जो सर कहानी सुनाते हैं ना, वो कहानी सुनने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और उसके थ्रू हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हिंदी। ये सीखने के बाद, ये करिकुलम करने के बाद उनका लर्निंग आउटकम क्या होने वाला है, उनका कंटेंट आउटलाइन किस तरह से डेवलप करना है, तो इसमें स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट तो ज़रूरी है, साथ साथ इंडस्ट्री का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन इंटरफेस एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट आज हर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंडिया में हमारे टीचर्स को उसके बारे में ओरिएंट किया जाता है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपको कोई भाषा आती है, 2 भाषा आती है, 3 भाषा आती है, हम हमारे लिटरेचर के स्टूडेंट्स को कहते हैं कि एक साथ जब आप शुरू करते हो इंग्लिश लिटरेचर सीखना या गुजराती लिटरेचर सीखना, उसके साथ साथ एक और भाषा जरूर सीखिए ताकि आप अपने करियर को इस तरह से एक आगे चैनलाइज कर पाएंगे जहाँ पे शायद आपको 9 to 5 जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। They can explore avenues which lead them to self-employment or entrepreneurship. And I am a person who loves to encourage students to be job givers rather than job seekers. तो आज एक विचारों का आदान प्रदान होने वाला है, खास करके टीचर्स के बीच में से बहुत कम मौके होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, लोग अपने पेपर्स प्रेजेंट करते हैं, थोड़ी बातें अपने मन में लेके चले जाते हैं, अपनी आइडियोलॉजी में लेके चले जाते हैं। पर इस तरह का जब एक आज डिस्कशन होने वाला है, वहाँ पे आई पर्सनली फील के 3 important things will turn out. One is we learn from each other how to transact a curriculum, and after that the second process is can we really change our curriculum, and the third is keeping the students in mind, and then only the end product will be the curriculum will be successfully transacted, effectively disseminated, and the student as well as the teachers will be enriched with this whole process. Yes, as I always tell my students कि जो भी हम करते हैं, चाहे वो शिक्षण का क्षेत्र हो या रिसर्च का क्षेत्र हो या इनोवेशन का क्षेत्र हो, one thing we need to keep in mind is our country at its highest priority, our ethos, our values. अगर हम वो मुद्दे बीच में हमारे एपिसेंटर में नहीं रखेंगे तो perhaps we will be doing something which may not really contribute to nation building. So मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि हम जो भी करते हैं, जो भी आइडियोलॉजी या जो भी करिकुलम डेवलप करते हैं, उसमें हमारे नेशनल इथोस को जरूर ध्यान में रखिए, हमारा हेरिटेज, हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस,
वो सारी बातें जरूर ध्यान में रखें, एंड परहैप्स देन वी विल बी एबल टू डू अ वंडरफुल जॉब। जय हिंद। So, the title of my work is Healing Wounds of Anti-Blackness in Education. And now you're probably saying, what the heck is anti-blackness? It refers to specific ways that societies, systems, and individuals discriminate against, devalue, and marginalize black people and their experiences. And in education, what this looks like is curriculum that leaves out black history and contributions and perspectives, lower expectations for black students, harsher discipline for black students. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नानावटी कॉलेज की ओर से, और ये संवाद बना रहे। ये ऐसा नहीं कि एक बार हुआ, ये बना रहना चाहिए, और कल्चरल एक्सचेंज इस तरह से होता रहे तो सबके लिए ये अच्छा भी है और बड़ा उत्साहवर्धक होता है, आपके लिए भी और हमारे लिए। मैं श्री अशोक ओझा जी को और गैब्रिएला मैडम को, जवाहर कर्नावट जी को खास तौर से, जिन्होंने हमको यहाँ पर जोड़ा, तो मैं सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ और इस कार्यक्रम को यहाँ